on the big screen, you can enjoy this session. If you are watching this session on mobile, तो मैं आपको suggest करूँगा you should watch it on a big screen, on computer or on your laptop, so that you can easily see. आप लोग उसको देख सकते हो. Sir, which is better, laptop or desktop? So mobile. Laptop or computer would be best option. No, sir. अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप बेटर एंजॉय करेंगे. लैपटॉप. हाँ, जूम आप उसको क्लिक करेंगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा. ओके सर. So today join in laptop or एनी टाइम. आज का थोड़ा सा क्लास है, हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, अभी सोल से बातचीत करेंगे, क्लास अपने नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. Today will be just saying तो नहीं आ रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में कोई इशू तो नहीं है, बिकॉज काफी लोग यूज टू नहीं होते, तो धीरे-धीरे अपने आप को एडजस्ट करते हैं. तो हमारे ट्राइंग टू सी. So before we conduct the class, I would like to ask, आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ. People can introduce me. आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या नाम है आप लोगों का. जैसे I can see on my screen Mr. Suraj Singh is there, Mr. Harkishan is there. अभी और भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो हम लोगों को ज्वाइन करेंगे. And then we will start the session. हम लोग सेशन स्टार्ट करेंगे. My first importance is कि आप लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर होना चाहिए, so that हम लोग इंटरेक्शन अच्छी तरह से कर पाएं. तो आई होप आपको ये वॉइस और वीडियो क्लियर नजर आ रहा होगा. आई कैन एक्सपेक्ट दिस. इज इट क्लियर? चलिए, आपकी क्या, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन मिस्टर मोहम्मद सादिक? क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन मिस्टर सादिक? आप सुन पा रहे हैं मुझे मिस्टर सादिक? क्या क्वालिफिकेशन आपकी? मिस्टर हरकिशन प्रजापति, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? Hello. Yes, Sadik. हाँ सादिक बोलिए, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? Yes, sir. I have a master's degree in commerce. Very good. Any experience or you are a fresher? Yes, sir. I am a fresher. Okay. Are you doing any course from ITA or only taxation? Hello. कोई और भी कोर्स कर रहे हो? Sir, audio clear नहीं आ रही. आप सादिक कोई और भी कोर्स कर रहे हैं, खाली टैक्सेशन ही सीख रहे हैं? सर मैं 12 months का कोर्स कर रहा हूँ, डिप्लोमा. अच्छा, बाकी कोर्स भी आप कर रहे हैं. फाइन. ओके. आपका क्या नाम है मिस्टर सूरज? कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ मिस्टर सूरज? Sir, yes sir. I am from Assam. I am a graduate with BCom. Okay. And also computer engineer. Okay, very Now, good. sir, my profession is I am a businessman, distributor. I have a 2 distributor in Dhemaji. Okay. So, okay, What sir. kind of you are interested? I mean, your distribution channel. What kind of products you are dealing Yes, in? yes. क्या deal कर? Actually, sir, I have a Tata Scan distribute here about Tata Scan distribute. You are distributor of Tata Sky Scan and distribute DTH. Very good. And distribute, yes, both of them. Okay. So हम लोग ये income tax का session ऐसा रखेंगे so that it is good for the people who are freshers or who don't know anything about income tax. तो हम लोग sections और बहुत ज़्यादा rules के ऊपर focus नहीं करेंगे. We will mainly focus on the practical aspect of income tax. जो practically हम लोगों को problem आती है, हम लोग वहाँ focus करेंगे. It is going to be a practical session. There will be less of theory, more of practical. अभी और कौन है? मिस्टर
कुशल कुमार, मिस्टर कुशल, आपसे बात नहीं हुई? मिस्टर कुशल, Yes, sir. अपने बारे में बताएंगे? Yes, sir. Actually, I am pursuing Bachelor in Commerce, ओके, and side by side, I also prepare for the government exams. ओके, That's it, sir. And so you are preparing for government exam and side Yes, by sir. side you want to learn income tax also. आप income tax भी सीखना Yes. चाहते हैं? Yes, sir. गुड। और कौन रह गए मिस्टर जो मुझे लिस्ट में नजर आ रहे हैं? प्रशांत सिंह, एक मिस्टर मेहर परमार। मिस्टर मेहर, आप पहले भी आए हैं, बोले मिस्टर मेहर, क्या करते हैं आप? Sir, I am doing BCom third semester, हाँ, and side by side I am preparing for CA foundation also. वेरी गुड। यू वांट टू बिकम अ Yeah. सीए, वेरी गुड। Yeah, एंड and there is a relationship between a CA and a tax, so I thought that take a admission in IPA and start. it is a very good decision. You will learn a lot of practical things in this session. I can Thank you, assure sir. you. I can assure you, you will learn a lot of things practical, and you will find this session interesting. I am in fact waiting for more students to come and join because कई लोगों की कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को टाइम का नहीं पता होता, there are some issues. So the first class will be just for introductory, किस तरह से आपने करना है, क्या करना है, and आपको ऑनलाइन एक स्टडी मटेरियल भी हम लोग देंगे. You can watch those study material. Shweta madam will share you all the soft copies so that you can read the books. And Yes, sir. yeah, before we start the session, okay, so now I hope you can see this Excel sheet. आप लोगों को Excel sheet नजर आ रही है? I hope सबको नजर आ Yes, रही है? sir. Very good. Yes, Yes, sir. Yes, sir. इनकम टैक्स 1961 होता है, इनकम टैक्स एक्ट। हम लोग जो कोर्स करवाएंगे, इन केस इफ यू फाइंड दीज वर्ड्स जो अल्फाबेट लिखे हैं, अगर छोटे आपको नजर आते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल इंक्रीज द साइज। अगर आपको विजिबल है तो बहुत अच्छी बात है। आर यू एबल टू रीड दिस? आप इसको पढ़ पा रहे हैं? yes, sir. Yes, sir. Yeah. गुड। इन केस कोई नहीं पढ़ पा रहा तो मुझे बता दीजिएगा, आई कैन इंक्रीज द साइज। तो हम लोग ये जो सेशन कंडक्ट करेंगे, we will discuss the theory part, then question answer. आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं फाइन, अदरवाइज अपने जो माइक्रोफोन्स को क्लोज करिएगा, उसको बंद कर लीजिएगा, अदरवाइज क्लास में नॉइज होगी। थर्ड, we'll be discussing the income tax and TDS return part online, and we will learn how to use TDS and ITR with the help of software. Sir, can you zoom the this Excel? Okay. Where are you marking? I'll just increase the size. I'll try to increase the size. I hope now the Okay, size sir. is good. Okay, Abhi okay, theek sir. hai Thank size? you. Fine. Right. I hope now you can see the screen also. Fine. Still. Good. So हम लोग थ्योरी सीखेंगे पहले, देन क्वेश्चन आंसर, देन हम लोग फॉर्म फिलअप करना सीखेंगे मैनुअली, देन विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन सॉफ्टवेयर वी विल learn how to file TDS and income tax return. And mostly it will be we'll be focusing on the private
on the practical aspect of tax. Income tax में mainly there are 5 heads of income. हम लोग ये डिस्कस करेंगे. फर्स्ट हेड इज सैलरी. हम स्लोली डिस्कस करेंगे इसको. देन सेकेंड हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन. थर्ड हेड कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इन द कमिंग क्लासेस. थ्योरी, क्वेश्चन आंसर, अकाउंट, इसमें जो टैक्सेशन के फॉर्म्स होते हैं, विल फोकस ऑन द फॉर्म्स. देन डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम. अभी लेट अस डिस्कस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. जो इनकम टैक्स है, दिस इज अ डायरेक्ट टैक्स. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस? एनीबॉडी ऑफ anyone of you can tell me what is the difference between direct tax and indirect tax? आप लोग को बता सकते हैं? Anybody? Yeah. What is the difference between direct tax and indirect tax? Direct tax, sir. Can I say, sir? Yes, बोलिए, कोई भी बोल सकता है. डायरेक्ट टैक्स and indirect. Direct tax has collect from goods and which is मतलब जो कस्टमर को सेल किया जाता है उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है. गवर्नमेंट कलेक्ट करता है. हाँ. गुड्स वगैरह होता है उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है ना सर? देखिए, टैक्स का मतलब है कर. हिंदी में इसको कर बोलते हैं. टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है. किसको पे करना है? गवर्नमेंट को. अब 2 टाइप की गवर्नमेंट हो गई. एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, एक स्टेट गवर्नमेंट हो गई. ठीक है. एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे जीएसटी आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. ठीक है. It is an indirect tax. Now, in case of indirect tax, tax is collected from the taxpayer. Taxpayer से आप tax collect करते हैं, but in indirect manner. Indirect का मतलब, for example, आप food खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, you are eating food. इसके ऊपर आपको tax pay करना है, GST pay करना है on the food. You are buying a car, तो इस कार के ऊपर आपको जीएसटी लगेगा और आप इनडायरेक्ट तरीके से दे देंगे. सिमिलरली, इफ यू आर गोइंग टू अ मूवी के अंदर टिकट के अंदर जीएसटी लगा है. मूवी टिकट के अंदर जीएसटी लगा है. सिमिलरली, इफ यू आर गोइंग टू अ डॉक्टर or any service provider, the GST is charged. This is called indirect way of collecting the taxes. Indirect way. अभी जो टैक्स, इनकम टैक्स है, this is nothing but a direct tax. ये डायरेक्ट टैक्स है हमारा. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. It is collected directly from a taxpayer. Directly का मतलब, for example, if I ask Mr. मेहर से पूछ लेते हैं क्वेश्चन. मेहर, आप कितना, आपको सैलरी, सपोज आपको मैं जॉब देता हूं, तो कितना सैलरी आपको मिलेगी? How much salary you expect? Mr. मेहर, कितना सैलरी पे काम करेंगे? सर 5 लाख पर एनम. 5 लाख पर एनम. ठीक है. गुड, वेरी गुड. अभी 5 लाख पर एनम में फॉर एग्जांपल 40-50,000 आपको पर मंथ में आपको सैलरी मिलता है. वेरी गुड. अब नाउ इफ योर रिलेटिव इज आस्किंग
टू गिव 30% ऑफ इट, आप उसको 10,000 रुपए दे दीजिए, यूं ही दे दीजिए, और ये आपका फ्रेंड आपसे मांग लेता है, इफ योर फ्रेंड इज आस्किंग, तो विल यू पे हिम, उनको देंगे आप? सर दे सकता हूँ। देंगे या नहीं देंगे, पहले ये बताइए। यस सर दे दूंगा। दे दूंगा, चलो गुड। 1 महीना दे देंगे, दूसरे महीना मांगेगा आपसे फ्रेंड कि भाई अपने 40,000 में से मेरे को 15,000 दे दीजिए, आप दे देंगे? नो सर, पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिकवर करूंगा, फिर सेकंड दूंगा। अगर मान लिया पहला उसने नहीं दिया, फिर दे देंगे उसको? सर इमरजेंसी हुई तो दे देंगे। चलिए कोई बात नहीं, सेकंड मंथ में दे दिया आपने, थर्ड मंथ में मांगेगा, दे देंगे? सर अब तो पहले पूछेंगे कि यूज क्या है। व्हाट इज द यूज? और अगर आपको पता लगे कि ये हर महीने मुझसे 30% मांग लेगा, मेरे 40,000 जो आपकी हार्ड अर्न मनी है, आपकी मेहनत की कमाई, उससे हर 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 महीने आपसे 30% 12,000 मांग लेगा, आप उसको फ्रेंड्स को देंगे या फ्रेंडशिप तोड़ देंगे? सर फ्रेंडशिप तोड़नी ज्यादा वो हो जाएगी। क्यों? इम्पोर्टेंट सर, एक तो कोई रीजन नहीं है उसको ऐसे देने का, ऊपर से कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, ना कोई इनकम अर्न हो रही है, उल्टा हमारी हार्ड एंड मनी जा रही है। आपकी हार्ड अर्न मनी, अभी मान लिया आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है, 1 लाख हो गई, तो आप 30,000 उनको दे देंगे अपने फ्रेंड को हर महीने? नो सर नो। क्यों नहीं देंगे? सर फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के लिए मेरे को रिजर्व बनाने पड़ेंगे अपने लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज योर हार्ड अर्नड मनी। कैसा है आपका, वो हार्ड अर्नड है कि वैसे ही आपको मिल गया? वैसे हार्ड एंड मनी। हार्ड अर्नड, आपने पूरी मेहनत करी और आपको पैसा मिला, आपको सैलरी मिली 1 लाख मान लिया पर मंथ, आप उसमें से अगर मैं बोलूं कि 30,000 रुपए आप दे दीजिए, तो शायद आप नहीं देंगे। फाइन, क्यों नहीं देंगे? बिकॉज आपका हार्ड अर्न मनी। नाउ दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट का मतलब मैं आपसे डायरेक्ट मांग रहा हूं, डायरेक्ट। कि मिस्टर मेहर ने 1 लाख रुपया अर्न किया, आई एम आस्किंग हिम टू पे डायरेक्टली। ना को उनको मैं मूवी दिखा रहा हूं, ना इनको खाना खिला रहा हूं, कुछ भी नहीं। खाली मिस्टर मेहर जैसे ही ऑफिस से निकले 1 लाख रुपए लेके, एंड आई विल आस्क हिम टू गिव मी 30,000। अभी क्या है, मिस्टर मेहर भागते हुए जो नजर आएंगे, मुझे नजर ही नहीं आएंगे। कभी इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मेरे से बात ही नहीं करेंगे। इफ आई एम फ्रेंड ऑफ मिस्टर मेहर, ही विल नॉट टॉक टू मी, ही विल नॉट स्पीक टू मी। ऐसा क्यों होगा मिस्टर मेहर, बोले ना? सर क्योंकि बिना किसी रीजन के पैसे मांगने आ जाते हैं फ्रेंड। हाँ, बिना किसी रीजन के आपसे पैसे मांग रहे हैं। हाँ, कोई इनको बेनिफिट नजर नहीं आता। एंड द बेस्ट पार्ट इज, इनको क्या लगता है, मेरी हार्ड अर्न मनी। मम्मी डैडी मांगेंगे तो दे देंगे, हो सकता है 1 बार देंगे, 2 बार देंगे, बट नॉट एवरी टाइम। अपने रिलेटिव्स को भी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे, बिकॉज इट इज योर हार्ड अर्न मनी। हार्ड अर्न है, ठीक है? ऐसे ही मिल जाता तो कोई बात नहीं, बट इट इज हार्ड अर्न। नाउ सपोज एनीबडी हु इज अर्निंग से 1 लाख पर मंथ, ठीक है, अगर वो अमाउंट 10 लाख हो जाता है, इट इज अ 10 लाख अमाउंट, अभी कोई 30% 3 लाख आपसे मांग ले, तो आपको देने में परेशानी होगी कि नहीं होगी मिस्टर मलिक, बताइए? परेशानी होगी? यस सर। सर अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुशी खुशी दे देगा? नो सर, हैं? नो सर। क्यों नहीं देगा? सर रिक्स है, पैसा मिलेगा कि नहीं? नहीं, वो तो पक्का ही नहीं मिलेगा, वो तो गारंटी है वही नहीं तो मिलेगा। सर, और उससे सर कहाँ से? हाँ, हाँ, वो तो मान के चलिए कि नहीं मिलेगा। उसने नहीं, रिक्स ही नहीं लेना सर, देना ही नहीं है। हाँ, देना ही नहीं, ठीक है? अगर कोई मांगेगा
तो उसको आप एक्सक्यूज कर देंगे, चले जाएंगे, उसका रिश्तेदारी का रिश्तेदारी तोड़ देंगे, फ्रेंडशिप तोड़ देंगे, यू विल नॉट पे। ठीक है, थोड़ा सा इशू आ रहा है बिकॉज इट इज अ हाई क्वालिटी, वी आर ट्राइंग टू सेंड यू हाई क्वालिटी पिक्चर, तो बीच में शायद कहीं ड्रॉप हो रहा है। एनीवे विल ट्राई टू इम्प्रूव। अच्छा, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। अभी आप डायरेक्ट का समझिए, डायरेक्टली आपसे कोई मांग रहा है, डायरेक्टली मांग रहा है। एक होता है इनडायरेक्टली मांगना। इनडायरेक्टली का मतलब आपको खाना खिलाना है, आप खाना खाने गए और बीच में से टैक्स ले लिया आपसे। आप शर्ट लेने गए, आपको बीच में से टैक्स ले लिया गवर्नमेंट। वो इनडायरेक्टली लेने का तरीका है, राइट? एंड इनडायरेक्ट कलेक्शन इज मोर, दिस इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब मैं आपके पॉकेट से डायरेक्ट पैसा निकाल लूंगा। आपको, जब मैं आपके पॉकेट से पैसा निकालूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। किसी को अच्छा लगेगा? बोलिए। नहीं सर। किसी को, nobody will like. Yes. That is the reason. And suppose this amount is more, जितना अमाउंट ज्यादा होता जाएगा डायरेक्ट टैक्स का, उतना आपको उसका डिफॉल्ट का मतलब पैसा नहीं देना, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो डायरेक्ट टैक्स में डिफॉल्ट हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज लोग टैक्स पे नहीं करना चाहते। उनको ऐसा लगता है, दे फील इट इज माई हार्ड अर्न मनी, आई डोंट वांट टू गिव टैक्स। इट इज वेरी कॉमन, इट इज विद एवरीवन, नोबडी वांट्स टू पे टैक्स। अभी मिस्टर मेहर की थोड़ी सी हम और बढ़ा देते हैं, सैलरी बढ़ा देते हैं। मिस्टर मेहर, कितनी सैलरी बता दें आपकी? बोलिए। 20 लाख पर एनम। अरे ज्यादा हो गया यार, इतना मत करो। चलो अभी आपको 1.5 लाख कर देते हैं। 1.5 लाख का मतलब मान के चलिए लगभग 18 लाख के आसपास हो गया। ठीक है, अभी 18 लाख में आपको अगर लगभग 30%, फॉर एग्जांपल 5 लाख देना पड़े फॉर एग्जांपल, तो आपको 13 लाख बच जाएगा। दिस इज कॉल्ड टैक्स, इनकम टैक्स। अभी मैं अगर मिस्टर मेयर को बोलूं, सर आपको पूरे साल में 18 लाख मिलेंगे, आप 5 लाख रुपए जाके गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट कराइए, चाहिए जमा कराइए, तो मिस्टर मेयर आप जाएंगे? यस सर, इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू पे टैक्स। तो इट भरेंगे इज योर रिस्पॉन्स। हाँ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप परेशान होके जाएंगे। यस सर। कोशिश करेंगे कि ना ही जाए, ये थोड़ा सा कम हो जाए, यस सर, या ना देना डिडक्शन। पड़े। यू विल ट्राई टू अवॉइड, बट जाना पड़ेगा। यस सर। अभी गवर्नमेंट बड़े स्मार्ट है, उनको पता है गवर्नमेंट को कि मिस्टर मेहर के पॉकेट में अगर 18 लाख आ गए तो वो 5 लाख रुपए जमा करते हुए बहुत प्रॉब्लम करेंगे, तो टैक्स हमारे को देंगे नहीं। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या बोला, अब इनको हम 18 लाख तो देंगे सैलरी, बट जो 5 लाख है हम डिडक्ट कर लेंगे और इनको नेट सैलरी 13 लाख मिलेगी। नेट का मतलब नेट सैलरी। ये जो 5 लाख है ये आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट करा देगा। एम्प्लॉयर का मतलब जो आपकी कंपनी है वो टैक्स जमा करा देगी, और इसको हम बोलते हैं टीडीएस। क्या बोलते हैं? TDS. Sorry. You will get 18 lakh. Mr. Meher will get 18 lakh. 5 lakh will be deducted and deposited by government, by employer with government. This is called TDS. ये TDS है आपका। इसको भी हम इनकम टैक्स बोलते हैं, बट इट इज TDS। अभी गवर्नमेंट ने ये रूल बना दिया कि एम्प्लॉय टीडीएस डिपॉजिट नहीं करेगा। हु विल डिपॉजिट टीडीएस? टैक्स कौन डिपॉजिट करेगा? एम्प्लॉयर। बिकॉज एम्प्लॉय के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। एम्प्लॉय विल नेवर गो एंड डिपॉजिट द टैक्स।
So this is also called tax, or you call it TDS. यहां तक थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, डिफॉल्ट रेट बहुत ज्यादा है। Anybody who is deducting tax and depositing is called TDS. ये बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी क्लियर हो गई। Now let us come to few more things. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए, एनी डाउट? सर जो टीडीएस वाली स्टेप बताए हैं उसको फिर से बता दीजिए, क्योंकि सर वीडियो अच्छे से शो नहीं हो रही। अभी रुक जाइए। हाँ, क्या नाम है आपका? जिसने क्वेश्चन पूछा आपने, क्या नाम है आपका? प्रशांत। 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 तो मान लिया मिस्टर प्रशांत ने क्वेश्चन पूछा है, प्रशांत को सैलरी मिल गई, प्रशांत को सैलरी मिल रही है मान लिया 18 लाख पूरे साल में। प्रशांत का टैक्स बनता है फॉर एग्जांपल 5 लाख। अब प्रशांत खुद नहीं जमा कराने जाएंगे, उनको सैलरी मिलेगी 13 लाख। ये जो 5 लाख जो टैक्स है, जो इसको इनकम टैक्स बोल रहे हैं, ये डिपॉजिट कराएंगे। कौन डिपॉजिट कराएंगे? एम्प्लॉयर, जो इनका एम्प्लॉयर है। इसको हम सोर्स भी कहते हैं, सोर्स। सर स्क्रीन इज नॉट विजिबल। थोड़ा सा इशू आ रहा है कनेक्टिविटी का। तो मिस्टर प्रशांत विल डिपॉजिट, sorry, he will get a salary of 18 lakh. 5 lakh will be deducted as tax and deposited by his employer. This amount is called TDS. हम इसको TDS भी बोलते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है डिपॉजिट करने की? एम्प्लॉयर की। मिस्टर प्रशांत को ये नेट सैलरी मिल जाएगी आफ्टर पेइंग द टैक्स। तो ये जो टैक्स है, ये मिस्टर प्रशांत नहीं डिपॉजिट कराएंगे, उनका एम्प्लॉयर डिपॉजिट कराएगा। फाइन, बिकॉज मिस्टर प्रशांत को टीडीएस को टैक्स जमा कराने में बहुत प्रॉब्लम होगी, उनका मन नहीं करेगा डिपॉजिट करने। हेंस द एम्प्लॉयर्स ड्यूटी इज टू डिपॉजिट टैक्स। दे विल डिडक्ट फ्रॉम सैलरी एंड डिपॉजिट। एनी डाउट? सर एक्सक्यूज मी, TDS means tax deduction at source, ना? जी, टैक्स का मतलब हियर इनकम टैक्स। फाइन, तो ये जो आपका टैक्स बनता था, ये आपका एम्प्लॉयर डिपॉजिट कर रहा है, आप नहीं कर रहे। आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपका मन नहीं करेगा डिपॉजिट करने। वो आपको मैंने बता दिया आपका मन क्यों नहीं करेगा, बिकॉज किसी का भी मन नहीं करता। आपको फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की सैलरी मिल जाए और आपको 30 लाख रुपए डिपॉजिट करना पड़े, तो आपका मन नहीं करेगा, आपका मन नहीं करेगा, बिकॉज दिस इज एन इशू, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। ये छोटी छोटी, दीज आर स्मॉल स्मॉल टर्म्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे। Now, what is the difference between assessment year and previous year? पहले तो आपको पता होना चाहिए कि previous year क्या है। What is the previous year? जिसको हम financial year भी कहते हैं। And what is the assessment year? आप लोगों में से कोई बता सकते हैं? Anybody who can tell me what is assessment year and what is previous year? Sir, assessment year is 2020, 21-22. नहीं, आप पहले मुझे बताइए व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। आप में से कोई बता सके? हेलो। हाँ पूछिए, बताइए। सर जिस ईयर इनकम अर्न करी जाती है वो प्रीवियस ईयर होता है, और जो असेसमेंट ईयर होता है जब वो उसको टैक्स कैलकुलेट करके वो
डिपॉजिट करते हैं? नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप अच्छी तरह से बता पाए। फाइनेंशियल ईयर या प्रीवियस ईयर वो ईयर है जहां पर आप इनकम अर्न करते हैं। आइदर यू कॉल इट प्रीवियस ईयर और यू कॉल इट फाइनेंशियल ईयर, कुछ भी कह लीजिए। सो फाइनेंशियल ईयर फॉर एग्जांपल अभी हमारा स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 2001 टिल 31 मार्च 2022। 20 इसको हम 22 फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं और प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं। यहाँ तक तो बात आपने बिल्कुल ठीक बताई। दिस इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। फाइन। अभी हम बात करेंगे असेसमेंट ईयर की। अभी थोड़ा सा लोगों को डाउट कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज असेसमेंट ईयर। काफी लोग बोलते हैं जहां टैक्स डिपॉजिट करना है। नो, दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। assessment, what is the meaning of assessment? It is the meaning of assessment is called a checking. आप एक चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग कौन कर रहा है? हु इज डूइंग द चेकिंग? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है हमारा वो चेकिंग करता है कि आपने टैक्स ठीक डिपॉजिट किया नहीं किया, आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, वो आपकी चेकिंग करेगा। कौन से ईयर में करेगा? नेक्स्ट ईयर में करेगा। इट इज कॉल्ड नेक्स्ट ईयर। यानी कि 1/4/22, 31/3/23, ये उनके पास टाइम है। इसको हम असेसमेंट ईयर बोल रहे हैं। असेसमेंट का मतलब चेकिंग। इट इज द ईयर इन विच इनकम टैक्स इज डूइंग द चेकिंग। इनकम टैक्स हमें चेकिंग कर रहा है। ये वो वाला साल है असेसमेंट ईयर। इनकम हम अर्न कब कर रहे हैं? इन द फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, आप टैक्स कब पे कर रहे हैं? फाइनेंशियल ईयर में। हाँ, अभी कंफ्यूजन है। आप मुझे बता सकते हैं टैक्स कब आप पे करते हैं? फाइनेंशियल ईयर में या प्रीवियस या असेसमेंट ईयर में? कब पे करेंगे? फाइनेंशियल असेसमेंट ईयर में शायद। कोई और बता सकते हैं? असेसमेंट ईयर में होगा शायद। फाइनेंशियल ईयर में पे करता है। फाइनेंशियल ईयर पे कुछ कह रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर में कुछ कह रहे हैं असेसमेंट ईयर में। नाउ द टैक्स हैज टू बी पेड इन दिस ईयर। फाइनेंशियल ईयर में पे करना है। इसको हम प्रीवियस ईयर भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। आपको टैक्स यहाँ नहीं पे करना, यहाँ पे नहीं करना है। आपको टैक्स यहीं पे करना है। असेसमेंट ईयर में सर। हाँ, असेसमेंट ईयर। आई एम राइट सर। राइट वे। So there is always अभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है। I need to check. Anyway, so आपको जो टैक्स पे करना है, you have to pay in this. Sorry, आपको टैक्स पे करना इन द फाइनेंशियल ईयर। आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स पे नहीं करना। असेसमेंट ईयर में वी हैव टू गिव डिटेल। हमें उनको डिटेल देना है। किसको डिटेल देना है? टू द डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट है? आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसको डिटेल देना है। क्या डिटेल देना है? कि सर हमारी इनकम कितनी थी और हमने कितना टैक्स पे किया। ये सारा डिटेल देना है। अभी डिटेल कैसे हमको देंगे? देयर इज अ फॉर्मेट, उसके अंदर डिटेल फीड करिए और अपलोड कर दीजिए। और ये जो डिटेल हम सबमिट करते हैं, इसको हम बोलते हैं ITR। ITR, इसको हम ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न, ITR। So we file this ITR in next year. It's called assessment year. टैक्स हमें कब पे करना है? In the financial year. Any doubt? किसी को कोई डाउट? आप पूछिए। शांत सर, प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर तो क्लियर हो गया, बट असेसमेंट ईयर क्लियर नहीं। फाइनेंशियल ईयर आप मान के चलिए जब आपने अर्न करा। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत। प्रशांत, आपने मान लिया सैलरी अर्न कर ली
एक फाइनेंशियल ईयर में हमने, ये फाइनेंशियल ईयर है, आप पूरे आपने सैलरी अर्न करी सपोज 12 लाख, फाइन, इस पे आपका टैक्स मान लिया बनता है 2 लाख, फाइन, कोई डाउट नहीं। नो ये सर। टैक्स आपको इसी साल के अंदर डिपॉजिट करना है, 1/4/21 से लेके 31/3/22 इसी साल के अंदर करना है टैक्स, फाइन, यस सर। इसी साल के अंदर करना है, फाइन, सर आपने जाना आप लोग, अच्छा, इसी साल में आपने करना है। अगर आप इफ यूर एम्प्लॉय, अगर आप सैलरी क्लास एम्प्लॉय है, तो जो आपका एम्प्लॉयर है वो हर महीने आपका टैक्स डिपॉजिट करेगा, एवरी मंथ। यस सर। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 लाख की सैलरी मिलनी है, तो वो थोड़ा सा टैक्स काटेगा से 20,000, और हर महीने डिपॉजिट करेगा, एवरी मंथ, हर एक मंथ में डिपॉजिट करेगा, छोटा 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 टैक्स। दिस इज कॉल्ड टीडीएस। वो नेक्स्ट ईयर में नहीं करेगा। अभी कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, सर, अभी जो SS नेक्स्ट, अभी जो हमारा नेक्स्ट आएगा, इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर, इसको बोलेंगे असेसमेंट ईयर, इसको बोल रहे हैं फाइनेंशियल ईयर। तो ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा 22 से लेके 31/3/23 तक। अभी ये हमने कुछ नहीं करना, असेसमेंट ईयर में हमें कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ वी हैव टू गिव अ डिटेल टू इनकम टैक्स ऑफिसर, हमने उसको डिटेल देनी है। इस साल में हमको डिटेल देना है। डिटेल का मतलब आईटीआर फाइल करना है, इनकम टैक्स रिटर्न, सिंपल। अभी आप इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे? आपको एक्सेल चलाना आता है? डू यू नो हाउ टू रन एक्सेल? आपको चलाना आता है सबको? yes or no? बेसिक I know. आते हैं सर, हाँ बेसिक। हाँ, बेसिक। अरे खोल के आप अंदर फिगर तो लिख लेंगे, इतना तो आता है। यस आता है सर। हाँ, तो बस एक्सेल आपने ओपन करना है, उसके अंदर फीड करना है सर, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका ईमेल, फादर्स नेम, आपका बैंक अकाउंट डिटेल, आपका एम्प्लॉयर नेम, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आपको कहाँ से इनकम है, कहाँ से टैक्स आपका कटा है, सारा आपको डिटेल एक एक्सेल शीट में सेव कर लीजिए और उनको दे दीजिए। इतना तो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? सकते हैं सर। वेरी सिंपल, एक फॉर्मेट है, उसके अंदर आप डिटेल फीड करिए और एक्सेल की शीट उनको दे दीजिए। इसको बोलते हैं आईटीआर फाइल करना, फाइलिंग द आईटीआर। आपने आईटीआर फाइल कर दिया। किसको दे देना सर? हाँ, किसको दे देना? किसको देना है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाके देंगे, उसको दे देंगे। अच्छा, एक्सेल शीट अपलोड करना पड़ता है? बिल्कुल। आप ओके। एक्सेल शीट किसी को कैसे देंगे, आप बताइए ना? या फिर ऑनलाइन, जैसे ऑनलाइन, हाँ, या तो ऑनलाइन ईमेल से भेज देंगे किसी को, ठीक है, या आप किसी को फ्लॉपी उसमें पेन ड्राइव में डाल के दे देंगे, ऐसे ये ले लो, या नहीं, आप मुझे अपलोड लगा कर देंगे। सर, मुझे लगा कि इनकम टैक्स लाइक जीएसटी का जो पोर्टल होता है, जैसे फिल करते हैं अपना डेटा, उसी तरह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे जाके फिल करना होता, मुझे ऐसा लगा था। दोनों ऑप्शन है। आप एक्सेल का फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए, आराम से बैठ के बनाइए, तो सेव कर लीजिए और जाके अपलोड कर दीजिए। ओके, वेरी सिंपल। आप ऑनलाइन भी जाके कर सकते हैं, घर में बैठ के आराम से ऑफलाइन बना के अपलोड कर दीजिए, दोनों प्रोसेस। गॉट इट सर। इट इज वेरी सिंपल। आपने बहुत सारी आपने करनी है, सपोज यू आर अ टैक्स कंसल्टेंट, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, देन यू नीड टू हैव अ सॉफ्टवेयर, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए। अभी 1 2 3 अभी है, तो आप इंडिविजुअली एक्सेल के साथ कर सकते हैं। वेरी सिंपल। तो ये जो आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न है, इट इज नथिंग बट इट इज अ डिटेल यू हैव टू गिव टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनकी साइट पे जाके देना है उनको। अभी ये सारा डिटेल आज से 20 ईयर पहले, बिफोर 20 years people used to give
इन राइटिंग। आपको एक बुकलेट मिलती थी, आप सारा डिटेल लिखिए उनको दे दीजिए, मैनुअल फाइल करना। अभी वो सब लोग वो सब चीजें एक्सेल में फॉर्मेट बने, आप उसको अपलोड कर दीजिए। ITR इज फाइल। ITR का मतलब है आपको डिटेल देना है। डिटेल में क्या आएगा, मिस्टर प्रशांत सिंह का नाम आ जाएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका ईमेल, उनका मोबाइल, उनका आधार, एड्रेस, फादर्स नेम, सेविंग बैंक अकाउंट, एम्प्लॉयर नेम, टोटल सैलरी, टोटल इनकम, टोटल टैक्स पेड, ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी और आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मांगेंगे। एनी डाउट? कोई डाउट आप लोगों को? नो सर। मतलब सर ये डिटेल्स जब हम सेंड करेंगे तो सेंड करने का मतलब क्या रहेगा सर? सेंड करने का मतलब ये है, आप एक्सेल में सारी डिटेल बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद लॉगिन करिए अपने पैन नंबर से और वहां अपलोड कर दीजिए, मैटर फिनिश। ओके मतलब डिटेल्स केवल देना रहता है सर एम्प्लॉय का, और कुछ नहीं। एम्प्लॉय नहीं, अपना डिटेल, जैसे आप प्रशांत है तो आप अपनी डिटेल हाँ लिखिए वहां पर एक्सेल में। आप उसमें फॉर्मेट होता है, उसके अंदर आप अपना नेम, फादर्स नेम, बैंक अकाउंट, ईमेल, आधार नंबर, पैन नंबर है, योर एड्रेस, योर सेविंग बैंक अकाउंट, आपका एम्प्लॉयर का नेम, उसका एड्रेस, उसने आपको कितना सैलरी दिया, तो सारा डिटेल, उसने कितना टैक्स डिडक्ट किया, ऑल दैट डिटेल। So income tax return is nothing but a detail. It is a detail. हमको डिटेल देना है। तो असेसमेंट ईयर में we have to give only डिटेल और कुछ नहीं बात करनी। हम टैक्स कब देंगे? इन द फाइनेंशियल ईयर, इन दिस ईयर, इनकम ईयर में, जब हमारी इनकम आन कर रही। असेसमेंट ईयर में, असेसमेंट मीन चेकिंग। चेकिंग मीन्स हमने उनको अपना डिटेल दे दिया, सर ये हमारी सारी डिटेल दे दीजिए। अब जब हम डिटेल दे देंगे, when we file the detail, then they will start doing the checking. अभी जब तक हम उनको डिटेल नहीं देंगे वो चेकिंग नहीं स्टार्ट कर सकते। अभी इनकी ड्यू डेट्स होती हैं, इनका डेट्स होती हैं। हाँ, ये जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है इसमें डेट्स है। डेट का मतलब आपको 31 जुलाई तक ये डिटेल देनी है, 31 जुलाई तक, ठीक है, 22। इफ यूर ए कंपनी देन यू हैव टू गिव सितंबर 30, ये स्टैंडर्ड डेट है, आपको सारी डिटेल देनी। तो असेसमेंट ईयर में वी हैव टू फाइल द ITR और कुछ नहीं करना हमको, एंड इट ओनली टेक्स 5 to 10 minutes to file the detail. Any doubt? मतलब सर ITR रिटर्न का मतलब ये होता है केवल डिटेल्स देना होता है और कुछ नहीं करना। ओके हाँ, कोई लड़ाई नहीं करनी, कोई बहस नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, आप डिटेल दे दीजिए, ओके सर ठीक है। अगर आपको डिटेल देते हुए गलती हो गई तो दोबारा दे दीजिए, रेक्टिफाई कर दीजिए, ठीक है। अभी आप लोग ये एक्सेल में देख रहे हैं, एक्सेल में ये सब चीजें देख रहे हैं ना, ऐसे आपको डिटेल देनी है, एक्सेल की फाइल देनी है और कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना, खाली एक्सेल की फाइल देनी है भाई। और अगर आप थोड़ा सा झूठ बोलना चाहें तो झूठ बोल सकते हैं। यू अंडरस्टैंड? यस सर। आपको कुछ नहीं देना, एक्सेल में फॉर्मेट में बना के उनको दे दो कि सर ये लो, मेरी ड्यूटी कंप्लीट हो गई। सर फाइनेंशियल ईयर का डाटा सब देना होगा असेसमेंट ईयर में? हाँ, फाइनेंशियल ईयर का डेटा देना। डेटा का मतलब आपने सारे बैंक अकाउंट की एंट्री नहीं देनी, सिर्फ टोटल बता देंगे, टोटल मेरे को इतनी सैलरी मिल गई, मैटर फिनिश, टोटल समरी। सर इन केस ऑफ समरी होती है जी। सर इन केस ऑफ बिजनेस, अभी तो सैलरी की सुन लीजिए। बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट देनी है, सारे अकाउंट की डिटेल नहीं देनी, ओनली बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। सारा एंट्री की डिटेल नहीं देनी, तो घबराइए मत।
सही के बिजनेसमैन है ना इसलिए। हाँ मैं तो देखो, जो समरी का मतलब, when you have a business, then you create a profit and loss and balance sheet. It is a summary, one page profit and loss, one page balance sheet. वो आप फॉर्मेट है उसके अंदर फीड करिए, उनको दे दीजिए। अब वो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट आपका करेक्ट है नहीं करेक्ट है, नाउ इट इज बिटवीन यू एंड इनकम टैक्स। इट इज ओनली a summary, you are just giving a summary. ओके सर। Any other doubt? तो अभी आपको क्लियर हो गया व्हाट इज प्रीवियस ईयर एंड व्हाट इज असेसमेंट ईयर। सर क्लियर। एनी डाउट? एनी डाउट रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। नो डाउट सर, क्लियर। फाइन, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्या हो गया भाई? ओके, अभी हमारे को ये डाउट अभी क्लियर हो गया। व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज फाइनेंशियल ईयर, ये हमारे को थोड़ा सा पता लगे। फाइन। अच्छा, अभी एक आप लोगों ने एडवांस टैक्स का भी नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना तो वी कैन डिस्कस। वन इज कॉल्ड, अभी हमने प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर तो हमने समझ लिया। अभी फॉर एग्जांपल क्या हो गया भाई? For example, this is my financial year and this is my assessment year. तो assessment year में तो हमने खाली ITR फाइल करना है। फाइनेंशियल ईयर में फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग अ बिजनेस। अभी हम सैलरी की बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। नाउ ऑन दिस प्रॉफिट यू हैव टू पे टैक्स, आपको टैक्स पे करना है। अभी इन केस इफ यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर रनिंग अ बिजनेस और एनी प्रोफेशन, आपका प्रॉफिट पे कोई टैक्स बनता है, that tax can be deposited into the same financial year। यहीं पर ही आपको फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना है, यहीं पर ही। आपको असेसमेंट ईयर में नहीं जाना, यू हैव टू डिपॉजिट हियर ओनली। फॉर एग्जांपल यू हैव अ प्रॉफिट ऑफ से 10 लाख पूरे साल का, उस पर जो भी आपका टैक्स बनता है, फॉर एग्जांपल 3 लाख, तो जो टैक्स आप डिपॉजिट करेंगे दिस विल बी कॉल्ड एज एडवांस टैक्स। अभी एडवांस का मतलब आप समझ रहे हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवांस टैक्स? एडवांस पहले तो बता सकते एडवांस हैं? देना। एडवांस का मतलब एडवांस देना। किसको दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट को हम एडवांस दे रहे हैं। So now when we are paying taxes to government,
इन एडवांस। एडवांस का मतलब समझ लीजिए, अभी ये प्रॉफिट है, टैक्स है, लेट अस ऐड अनदर वर्ड, इट हैज टू बी एस्टिमेशन बेसिस, एस्टिमेट बेसिस पे। अभी ये जो आपका प्रॉफिट है, आपको उसको एस्टिमेट लगाना है। इफ यू आर अ बिजनेसमैन, एस्टिमेट कैसे लगाएंगे? अभी एक आसाम से हमारे स्टूडेंट हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? What is your name? सूरज सिंह सर। मिस्टर सूरज, आप यू आर फ्रॉम आसाम, सूरज यू सिंह। वांट टू, अभी आपका बिजनेस करना चाहते हैं, राइट? अभी बिजनेस में आपका, राइट। राइट, आपके पूरे साल के प्रॉफिट कितना आप एक्सपेक्ट करते हैं? कुछ भी बता दीजिए। हाँ सर, से 10 लाख पकड़िए। 10 लाख। अभी पहले दिन आपको पता लग जाएगा फाइनेंशियल ईयर में, अप्रैल में, कि आप 1 अप्रैल को आप बात करेंगे, तो आपको कैसे पता लगेगा पूरे साल के 10 लाख हो जाएंगे? आपको ड्रीम आएगा क्या? आप सर बताइए वो ना। तो नहीं, वो नहीं आएगा। हाँ, कोई आपको पड़ोसी बताएगा आपको सर 10 लाख के प्रॉफिट है? हु विल टेल यू? मैं व्हाट इज मतलब मैं बिजनेस कैसे रन हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हाँ, मतलब कि अगर मैं पूछूं कि मिस्टर सूरज, आपका बिजनेस है, आपका इस नेक्स्ट ईयर में, अभी ये जो ईयर है, कितना प्रॉफिट होगा, तो आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। क्या लगा एस्टिमेट सकते कर हैं? सकते हैं, राइट। एस्टिमेट। एस्टिमेट। हाँ, सर इतना हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस। अभी आपको कोई ना गवर्नमेंट बताएगा, ना पड़ोसी बताएगा, ना आपका कोई फ्रेंड बताएगा, वो आपको एस्टिमेट लगाना है। फाइन। जी। तो आपको फाइन। ईयर बिगनिंग में एस्टिमेट लगाना है, तो इट हैज टू बी एस्टिमेटेड प्रॉफिट। आपको पहले दिन एस्टिमेट लगा लो, सर पूरे साल का इतना एस्टिमेटेड प्रॉफिट है। इट कैन नेवर बी एग्जैक्ट, इट हैज टू बी एस्टिमेटेड। राइट? अभी जो आप एस्टिमेशन लगाएंगे, एस्टिमेशन टैक्स का भी एस्टिमेशन लगाएंगे, इट हैज टू बी एस्टिमेटेड। अनुमान, हिंदी में बोलते हैं अनुमान। मैंने सोच लिया, एस्टिमेटेड, मैंने सोच लिया। फाइन, यहां तक कोई डाउट? एनी डाउट? नो। अभी जो आपने एस्टिमेट लगा दिया, जो भी आपका प्रॉफिट है, एनी प्रॉफिट और एनी एस्टिमेटेड टैक्स, वो आपको यहाँ डिपॉजिट करना है। वो आपको क्या करना है? यहाँ डिपॉजिट करना है। एडवांस टैक्स में डिपॉजिट करना है, ये मान के चलेगा। एडवांस टैक्स कहाँ गया भाई? इट हैज टू बी पेड इन एडवांस टैक्स। ये आपका एडवांस टैक्स आ गया, दिस इज एडवांस टैक्स, एंड टैक्स हैज टू बी पेड in 4 Screen is not displayed. installment. Sorry. Okay. So screen is not displayed. हाँ, मैं मुझे बता दीजिए। Now the advance tax has to be paid in 4 installments. अभी पहले एस्टिमेट लगाएंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका जाएगा 15 जून, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। There are 4 installments. You can pay your estimated, I repeat, estimated tax. ठीक है? आपको ये डेट्स हैं 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर एंड 15 मार्च। अपने पास नोट कर लीजिएगा। These are the 4 dates. आप नोट कर सकते। These are the 4 dates of advance tax. अभी ये 4 एडवांस टैक्स की डेट्स हैं। तो जो भी आपका टैक्स बनता है, इन केस ऑफ बिजनेस में, इन केस ऑफ प्रोफेशन बिजनेस, आपका जो एस्टिमेटेड, आई रिपीट, एस्टिमेटेड बेसिस पे, अनुमानित जो भी टैक्स बनेगा, इट हैज टू बी पेड इन 4 इंस्टॉलमेंट। 15 जून फर्स्ट है, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, दीज आर द ड्यू डेट्स।
सेकंड क्या है? परसेंटेज, 15%, 30%, 30% एंड 25%। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 डिपॉजिट करना है टैक्स एस्टिमेटेड पर, तो पहला आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी 150 की, फिर 300, फिर 300 एंड फिर 200, 250, 150, 300, 300 एंड 250। तो टोटल आपका 1000 डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। एडवांस का मतलब यू आर पेइंग गवर्नमेंट इन एडवांस। अभी आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज नहीं हुआ, फाइनेंशियल ईयर अभी क्लोज नहीं हुआ, बट यू हैव टू पे इन एडवांस। यू आर पेइंग इन एडवांस। आपको एडवांस टैक्स प्रीवियस ईयर में पे करना है, असेसमेंट ईयर में नहीं करना। अगर आपका कुछ अमाउंट रह जाता है, छोटा सा अमाउंट रह गया, then you can pay it in assessment year also। अभी अगर आपका एडवांस टैक्स 1000 बनता था, आपने 900 पे कर दिया, थोड़ा सा अमाउंट रह गया, you can pay here also, and this is called assessment, self assessment tax। इसको हम self assessment tax बोलेंगे, self assessment tax। यहां जो डिपॉजिट कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एडवांस टैक्स। मोस्टली जो बिजनेसमैन लोग हैं, दे डिपॉजिट देयर टैक्स एज एडवांस टैक्स। गवर्नमेंट ने रूल बना दिया, आपको एडवांस टैक्स पे करना है, डिपॉजिट करना है, एंड दीज आर द ड्यू डेट्स। ये ड्यू डेट्स हैं। ड्यू डेट्स कौन सी हैं? 15 जुलाई, जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, ये ड्यू डेट्स। एंड दीज आर द परसेंटेज। एनी डाउट? यस सर। हेलो सर, जैसे एडवांस टैक्स जो हम लोग देंगे, ये मतलब जैसे कि कुछ अमाउंट लिमिटेशन है, जैसे इनकम के ऊपर क्या एक्सिट इनकम है उसके ऊपर, या कोई ऐसा कुछ निर्धारित है? एडवांस टैक्स हैज टू बी पेड ऑन एस्टिमेशन बेसिस। एस्टिमेशन का मतलब आप पहले अपने प्रॉफिट का एस्टिमेट लगा लीजिए, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर लीजिए, एंड पे इन 4 इंस्टॉलमेंट्स। धीरे धीरे पे करना बिफोर द फाइनेंशियल ईयर। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च को खत्म हो जाएगा, 31 मार्च को, इससे पहले पहले कर दीजिए। 1 अप्रैल से, इसके बीच में आपके पास टाइम है, 1 अप्रैल के बीच में आपको 4 इंस्टॉलमेंट है, 4 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर दीजिए। इंस्टॉलमेंट नंबर 1, 2, 3, 4। आपको वेट नहीं करना, और ये इंस्टॉलमेंट आपका एस्टिमेट बेसिस पे है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में वो विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, व्हाट इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्सेस, हाउ टू डिपॉजिट, हम लोग बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू, ऑन व्हाट डेट यू हैव टू डिपॉजिट टैक्स। आपको डिपॉजिट कब करना है? आपको फाइनेंशियल ईयर में करना है, प्रीवियस ईयर में करना है, आपको असेसमेंट ईयर में नहीं करना। असेसमेंट ईयर इज ओनली मेंट फॉर फाइलिंग द रिटर्न। अभी कोई और डाउट? सर, हाँ पूछिए। सर ये जो इंस्टॉलमेंट के अलावा हम लमसम में भी पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को? हाँ कर दीजिए, आप तो सबसे अच्छे टैक्स पेयर होंगे, लमसम दे दीजिए ना। सर इसकी भी कोई तारीख होती है लमसम? अभी नहीं, अभी सुन लीजिए, अभी मैं गवर्नमेंट हूँ, आपने मेरे को टैक्स पे करना है, आप इकट्ठा मुझे दे दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी, बट आपको मैं डिस्काउंट नहीं दूंगा। नो सर, फिर तो ये खड़ी होगी। ठीक है, हाँ, अगर मैंने आपको, आई हैव गिवन यू ऑप्शन कि आप 4 इंस्टॉलमेंट में आराम आराम से करिए, धीरे धीरे। आई एम गिविंग यू इंस्टॉलमेंट प्लान। अभी आपने सारा करना है तो मुझे दे दीजिए, आई एम वेरी हैप्पी।
ओके सर, फाइन। यस सर, अभी अगर मैंने आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दे रखा है, देन यू विल ऑलवेज अवेल दैट इंस्टॉलमेंट प्लान। आपको तो अच्छा लगना चाहिए। हाँ, इंस्टॉलमेंट प्लान में अगर आप अपने इंस्टॉलमेंट लेट करेंगे, देन गवर्नमेंट विल चार्ज यू, आपसे पेनल्टी, आपसे इंटरेस्ट ले लेंगे। फाइन आप सर, सारा दे दीजिए, बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी। और सर इंस्टॉलमेंट ना देके लास्ट में देने से फाइनल मतलब फाइनल जो भी होगा तब नहीं आप होगा, दे सकते हैं फाइन, जब आपको इंटरेस्ट पे करना, यू हैव पड़ेगा। टू पे इंटरेस्ट। यस, हम लोग जब यहाँ पर आएंगे, हम लोग अभी कैलकुलेशन की टैक्स रेट की भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी तो हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, फिर हम एडवांस टैक्स की बात करेंगे। हम एडवांस टैक्स कैसे डिपॉजिट करेंगे, उसमें कितना पेनल्टी लग सकता है, हम बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एडवांस टैक्स की भी बात करेंगे आने वाले टाइम में। टैक्स रेट्स की भी बात करेंगे, कैसे डिपॉजिट करते हैं। अभी इट इज अ सिंपली इंट्रोडक्शन क्लास कि आपको थोड़ा सा जो बेसिक चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करना है, व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न, ये बेसिक जो चीजें अभी आपको वही इंट्रोडक्शन मिला। slowly we will move forward, and there would be around this is going to be 30 to 40 hour session। 30 से 40 घंटे आपका लग जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, this session will take 30 to 40 hours। ओके, अभी हम इनिशियली 1 to 1.5 मतलब 1.5 आवर्स का लेके चलेंगे सेशन, 1.5 घंटे का सेशन लेके चलेंगे, 1.5 आवर्स का सेशन, एंड देन देयर वुड बी अराउंड से 20 सेशंस। ये सारे सेशंस होंगे, प्लस 5 सेशन वुड बी फॉर ऑनलाइन। ऑनलाइन आपको पढ़ाना है, ऑनलाइन सॉफ्ट जो टीडीएस रिटर्न, आईटीआर रिटर्न, वो उसमें चलेंगे 5 सेशन। तो आज हम लोग फर्स्ट जो सेशन है, इट इज अ स्मॉल सेशन बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। वो लोग ज्वाइन करेंगे एंड देन वी विल slowly विल स्टार्ट। एंड आपके हफ्ते में वीक में देयर वुड बी 3 सेशंस, 1, 2 and 3। slowly we will increase up to 4, 5 also, but initially आपका हफ्ते में one week में 3 सेशन रहेंगे। slowly we will increase the time and the class hours। पहले स्लो चलेंगे, फिर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, so that आप लोग used to हो जाएंगे। अभी आप लोग नए हैं, you are not used to, धीरे धीरे आप लोग पिकअप करेंगे। Your next class would be on Tuesday। We will conduct these sessions Tuesday, then Thursday, then Saturday। अभी हमारा Tuesday, Thursday, Saturday, same time at 7 o'clock। सर एक्सक्यूज मी सर, हेलो सर, मैडम बता रही थी मंडे Monday, Wednesday, मंडे Friday। बट अभी आप ट्यूसडे लेके चलेगा। वेडनेसडे से फ्राइडे। हाँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था मैम को, बट अभी हम ट्यूसडे, थर्सडे इसको लेके चलेंगे। अगर बाद में कोई सपोज चेंजेस होता है तो आपको ग्रुप में पता लग जाएगा, विल इन्फॉर्म यू इन द ग्रुप। बट अभी आप टीटीएस में मान के चलिए, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। From next week we will increase the number of days। अभी कोई डाउट आपको, एनी अदर डाउट? मंडे को ज्वाइन नहीं नो सर। मंडे को क्लास विल नॉट बी देयर, इट विल बी ऑन ट्यूसडे। ओके सर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बिकॉज आप लोग थोड़े से नए हैं, whenever you want to ask any question you can ask। उसके बाद अपना जो माइक्रोफोन है उसको क्लोज कर दीजिएगा, अदरवाइज क्लास के अंदर डिस्टरबेंस रहेगी।
Sir, time will be same or changes? Same time, 7 till 8:30. अभी तो हमने 1 hour का ऑफलाइन में session भी किया, टाइमिंग है? then slowly will increase to 9 also. 7 to 9. Slowly will increase. आप पूछिए। ऑफलाइन में भी ये टाइमिंग है सर? हाँ, ऑफलाइन में? ऑफलाइन में भी सेम टाइम रहेगा। ठीक है। If somebody wants to come in offline, they can come. Because कुछ लोग हमारे वर्किंग लोग हैं, so they only get in that time in the evening. Fine. Okay, sir. Thank you. So we are going to start this. We are going to close this session. So thank you so much for joining me in this session. अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, otherwise we will close it right now. तो टाइमिंग सर। Thank you.